Hello everyone. In this video lecture, we will study linear differential equations with constant coefficients. So first, we take a look at the definition, which is very simple. Any differential equation which looks like this, okay, means जिसमें nth derivative term हो, n minus 1th derivative term हो, n minus 2 derivative term, and so on. And P0, P1, P2, these are either constants or functions of x. So functions of x. And q is also either constant or function of x. And this type of differential equation is called differential equation of order n, linear differential equation of order n with constant, sorry, not constant coefficient. This is a linear differential equation of n order. That's it. But if these P0, sorry, P0, P1, P2, suppose these are all constants, then this differential equation is called linear differential equation with constant coefficients, because now we are taking all the coefficients constants. For example, consider this equation: 2d2y upon dx square plus 3dy upon dx plus 5y is equal to sine x. And if we compare this with this, where P0, P1, all these are constant, then we can see that the right hand side is, this is q sine x, okay, and this is P0, 3 is P1, 5 is P2. So we can see that all these coefficients on the left hand side, which are P0, P1, P2, these are all constants. Constants हैं ये, ठीक है, फंक्शन x इसमें कोई x नहीं है, कुछ y नहीं है, these are just constant numbers. So we will say that this is a linear differential equation with constant coefficients. Here right hand side can be constant, यहाँ पे constant भी रख सकते हैं और कोई function of x भी रख सकते हैं. Okay, so इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं ये हम बेसिकली सीखेंगे. तो whenever जब भी हमें nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट की जरूरत होगी, तो हम उसको इस टाइप में लिखेंगे. ओके, यहाँ पे हम q लिख देंगे. ऑलराइट, suppose this is 0, right hand side is 0, then we can also say that this is a homogeneous linear differential equation with constant coefficient. Okay, now the question is, इस टाइप की differential equation दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि solve it means find the general solution. Okay, तो इस टाइप की differential equation का general solution इस तरह से दिया जाता है: y is equal to cf plus pi. ये आप आगे देखेंगे. Complementary function, this is complementary function, okay, and this is particular integral, pi, particular integral. In some books it is also called particular solution. ये क्या है हम देखेंगे. पहले CF देख लेते हैं. What is CF? CF is basically, suppose आपको इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन दी है जिसमें राइट हैंड साइड q है. q can be any function of x or q can be any constant. Then CF of this differential equation is the solution of this equal to 0. Okay, ये जो पूरी लेफ्ट साइड में जो लिखा गया है, ये पूरा लेफ्ट साइड में जो भी लिखा गया है, दिस इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन है CF. ओके, एंड PI क्या है हम आगे पढ़ेंगे अभी. ठीक है, फिलहाल हमें भी CF की ज़रूरत है. अभी हम फर्स्ट एक्सरसाइज में हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं जिसका राइट हैंड साइड 0 है. ऑलराइट, सो okay, so let's understand these kind of problems with this short example. So we are given a differential equation which is of second order, and we can say that this is a linear differential equation with constant coefficients, because here coefficients are -44, -7 and 1. These are constant coefficients. So this is a linear differential equation with constant coefficient. Okay, right hand side, जैसे कि मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में हम राइट हैंड साइड 0 वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं. So this question is solve this, means find the general solution of this. Okay, so
आई जस्ट टोल्ड यू दैट जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, पी आई क्या होता है मैंने अभी आपको बताया नहीं है, आगे देखेंगे। बट अभी के लिए मान लीजिए कि जो राइट हैंड साइड में जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में जीरो हो, जिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट कोएफिशिएंट में राइट हैंड साइड जीरो हो, उसके लिए पी आई जीरो होता है। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन में जो जनरल सॉल्यूशन है वो होता है y इज इक्वल टू सी एफ। ओके, सी एफ कैसे निकालते हैं वो अभी देख लेते हैं। So this is the differential equation. सबसे पहले we can write this differential equation as this. Okay, so how? Because we can see that here d is the notation for d by dx. Okay, what d square is the notation for d2 by dx square. Similarly, अगर कहीं पे आपको d4 दिखता है, d4 is the notation for this operator. Okay, so d square, देखो this can be written as d square y because d is this, d square y हो जाएगा d2 by dx square. Okay, so d square y minus 7, this is dy minus 44y, तो y common ले लेंगे and we will get this. Alright, so and when we multiply y within this bracket we will get the same thing, d square y minus 7 dy minus 44y, this. So this equation can be written like this. Okay, so from here, as क्यों लिखा हमने, from here we can see that this equation can be considered as this f d y is equal to 0. इस पूरे को मैं एक फंक्शन ऑफ d बोल रहा हूँ, ठीक है, एफ डी सम फंक्शन ऑफ d। तो हर इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, जो भी इस चैप्टर में इक्वेशन पढ़ेंगे हम वो इस फॉर्म में होगी, सम फंक्शन ऑफ d इंटू वाई इक्वल टू 0. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज auxiliary equation. Every differential equation of this kind will have an auxiliary equation. What is auxiliary equation? Suppose we have this equation, then replace this d by m, so we get fm and equate this to 0, इसको 0 के इक्वल रख दो, so this equation will be called auxiliary equation. ठीक है, हमारे यहाँ पे fd क्या था, ये इसमें हम m रख दी की जो m रख देंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 7m माइनस 44 इक्वल टू 0, ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई. ऑलराइट, नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन के ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है. अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन देख सकते हैं हम यहाँ पे दो ऑर्डर की थी, तो ये दो ऑर्डर की एक इक्वेशन बनने वाली है एम के टर्म्स में. सपोज ये ऑर्डर, इसका ऑर्डर 4 होता तो ये 4 ऑर्डर की बनती है. ओके, तो फिलहाल हमारे पास दो ऑर्डर की ऑक्सिलरी इक्वेशन है एम के टर्म्स में, इसके हमें रूट्स निकालने हैं. तो सिंस दिस इज अ 2 डिग्री इक्वेशन, सॉरी दिस इज अ यस 2 डिग्री इक्वेशन, सो वी विल गेट 2 सॉल्यूशंस फॉर वाई. ठीक है, अब ये सॉल्यूशंस रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं. ठीक है, रियल वाले केस में भी आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे इस केस में दोनों सॉल्यूशंस इसके रियल आ रहे हैं, m इज़ 11 एंड m इज़ -4. ओके, वी कैन सॉल्व दिस. वी कैन ऑल्सो यूज़, यहाँ पे इन्होंने फैक्टर मेथड यूज़ किया है. वी कैन ऑल्सो यूज दिस मेथड, m इज़ इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4 is c अपॉन 2a, right, where this equation can be written like this, am square plus bm plus c is equal to 0, so that we can see that a is m, b is -7, c is -44. तो ये भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं. एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद फैक्टराइजेशन मेथड तो इसको फैक्टर कर लीजिए. फ्रॉम हियर वी गेट m is equal to 11 and -4. Okay, so here we can see that we are getting two real roots of m, two real solutions of m of this equation, and though these two real solutions are distinct, अलग अलग हैं ये real solutions. ठीक है, समटाइम्स आप ये भी देखेंगे कि आप इसको सॉल्व करेंगे एंड यू गेट m इज इक्वल टू 11 11 और m इज इक्वल टू 11 11 11. ठीक है, मल्टीपल रूट्स. सो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होने वाला है ये डिपेंड करता है कि आपकी रूट्स क्या है. ठीक है, इसके लिए अब मैं आपको थोड़ा पीछे ले जा रहा हूँ. यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप की इक्वेशन दी होती है आपको, राइट हैंड साइड 0, ये आपका फंक्शन ऑफ डी है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक. ओके, तो एक टेबल बनाई गई है, यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स लिखा गया. नेचर ऑफ रूट्स किसके, जो ये एफ डी यहाँ से मिला आपको, यहाँ से आपको एफ एम इज इक्वल टू 0 ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगी. राइट, ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स निकलेंगे उनके नेचर की बात कर रहे हैं. तो अगर जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसको सॉल्व करके सारे रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, जैसे कि हमारे इस केस में है,
सारे रूट्स रियल नंबर्स हैं और डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, तो उस केस में हमारा जो y होगा, मतलब बेसिकली ये सॉल्यूशन मतलब CF की बात कर रहा है ये, ओके। CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस केस में क्या होगा, देखिए अगर सारे रूट्स ये हैं, सपोज M1 M2 M3 Mn रूट्स दिए गए हैं और सारे रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, ये मान के चल रहे हैं हम, तो यहाँ पे जूम इन, इस केस में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो होगा y इज इक्वल टू C1 e टू द पावर m1x, ये इस वाले के लिए हो गया, प्लस सिमिलरली M2 के लिए भी एक टर्म हो जाएगा C2 e टू द पावर m2x प्लस सो ऑन। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हुआ y वो हो गया e टू द पावर 11x इस 11 के लिए, और C1 एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगा दिया, प्लस -4 के लिए e टू द पावर -4x एंड एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दूसरा लगा दिया। जितने m के रूट्स होंगे उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, दो रूट्स हैं तो हमने दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज किए हैं, तो ये हमारा हो गया CF। ठीक है, और इस केस में जो जनरल सॉल्यूशन है वो भी यही हो जाएगा, y इक्वल इतना, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा अगर राइट हैंड साइड में जीरो होगा तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमेशा जीरो होता है, तो इस टाइप की क्वेश्चंस के लिए y जनरल सॉल्यूशन होगा y इक्वल CF, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नाउ फिर से हम देखते हैं, सपोज जो आपने ऑक्सिलरी क्वेश्चन सॉल्व की उसके रियल रूट तो हैं लेकिन इक्वल रूट हैं, ईच M1, मतलब सारे सपोज ऐसे रूट्स हैं M1 कॉमा M1 कॉमा M1 कॉमा सो ऑन कॉमा M1 n बार n टाइम्स। ठीक है, तो उस केस में इस रूट M1 के लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो ये होगा, आपको क्या करना है, e टू द पावर m1x तो लेना ही है, ठीक है, बिकॉज M1 आपका रूट है, साथ ही साथ यहाँ ब्रैकेट में अब आपको C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू Cn x की पावर n-1 लेना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये यहाँ पे M1 तीन बार आया होता, M1 जस्ट अ मिनट, M1 तीन बार सपोज ये रूट रिपीट होता, तो इस केस में y हो जाता हमारा e टू द पावर m1x, और यहाँ पे तीन रूट्स हैं तो तीन कॉन्स्टेंट्स आएंगे, बट इस केस में ऐसे लेंगे हम C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, ओके, एंड सो ऑन। नाउ ये तो हुआ रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल सेम रूट्स। नाउ वी कम टू कॉम्प्लेक्स रूट्स, कभी कभी कॉम्प्लेक्स रूट्स भी आएंगे, ओके, अल्फा प्लस आइटा बीटा एंड अल्फा माइनस आइटा बीटा, एज वी नो दैट कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स, अगर कोई किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने पर ये रूट आता है तो ये भी रूट होगा, कोई कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर्स में आते हैं, इफ़ द इक्वेशन हैज़ रियल कोफिशेंट्स, अगर जो इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें जो कोफिशेंट्स हैं वो रियल हैं तो, ओके। सो सपोज वी सॉल्व द auxiliary equation and we get the roots alpha plus minus iota beta where alpha and beta are real, and इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इन तीन तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इन तीन तरह से आप कैसे भी लिख सकते हैं। पहला तरीका अकॉर्डिंग टू मी आई ऑलवेज प्रीफर दिस, ठीक है, तो आप भी प्रीफर कर सकते हैं। सो इस केस में जो हमारा जनरल CF होगा वो होगा y इज इक्वल टू, और अल्फा के लिए आ जाएगा e टू द पावर अल्फा एक्स, एंड देन ब्रैकेट के अंदर जो इमेजिनरी पार्ट है उसके लिए हम लिखेंगे C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स बीटा, ओके। सो अगेन वी कैन सी दैट यहाँ पे दो रूट्स थे हमारे पास, अल्फा प्लस आइटा बीटा एंड अल्फा माइनस आइटा बीटा, तो हमने दो कांस्टेंट ले रखे हैं। इसी तरह से इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देखेंगे C1 और C2 दो कांस्टेंट लिए गए हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, C1 C2। अगेन सपोज कॉम्प्लेक्स रूट्स भी रिपीट करने लग जाएं, जैसे कि यहाँ पे रियल रूट रिपीट करें तो क्या होगा, तो यहाँ पे लिखा गया है सपोज अल्फा प्लस आइटा बीटा, सपोज ये R टाइम रिपीट हो रहा है, अल्फा प्लस आइटा बीटा अल्फा प्लस आइटा बीटा अल्फा प्लस आइटा बीटा एंड सो ऑन, तो इस केस में बिल्कुल यहाँ इसके जैसा ही होगा, लाइक e टू द पावर अल्फा एक्स रखेंगे हम यहाँ पे ये, ओके, और ब्रैकेट में जहाँ पे आपने C1 cos बीटा एक्स लिखा है वहाँ पे C1 की जगह आएगा कुछ इस टाइप का, R बार रिपीट हुआ है तो C1 की जगह आएगा C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस सो ऑन CR x की पावर R-1 एंड देन cos बीटा एक्स, एंड अगेन C2 sin बीटा, इसमें भी C2 की जगह पे ये पूरा आ जाएगा। ऑलराइट, सो सिमिलरली ये होते हैं आपके पास इरेशनल रूट्स, यहाँ पे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ओके, हियर वी हैव आइटा, हियर वी डोंट हैव आइटा,
सो सपोज इस टाइप के रूट्स मिले आपको, सपोज जैसे इरेशनल रूट्स मीन्स 5 प्लस माइनस अंडर रूट 3 लाइक दिस, इसके लिए भी बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो जैसा इसके लिए है, बस बीटा की जगह पर रूट बीटा रखना है। ओके ओके इन्होंने ये वाला और ये वाला यूज किया है, एनीवेज वी कैन ऑल्सो यूज दिस। सो इस टाइप का फॉर्मूला इसके लिए हो जाएगा y इज इक्वल टू c1 cos रूट बीटा एक्स प्लस c2 sin रूट बीटा एक्स होल मल्टीप्लाइड बाई e to the power alpha x, and we can also write this. Okay, so now we come back to the examples, equation हम कर चुके हैं। Let's see this. This is again right hand side is 0, so the general solution of this will be y is equal to cf plus pi, pi is 0, so this cf आपको find out करना है। First of all, this equation can be written like this, and from here we can see that the auxiliary equation is m square minus 4m plus 1 is equal to 0. Okay, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे इन्होंने y लिखना भूल गया है। Okay, now we solve this and we get two roots, 2 plus root 3, 2 minus root 3, and the root 3 is irrational number, so ये जो roots हैं ये वाला केस हो जाएगा 5 वाला irrational roots, और so the general solution will be y is equal to cf, cf is this c1 e to the power this plus c2 to the power this can also be written like this, ये इस तरह का आप सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा अल्फा है प्लस माइनस ये हमारा बीटा है, so e to the power alpha x and within bracket we get c1 cos hyperbolic, okay hyperbolic आता है राइट, यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस कर दी, यहाँ पे hyperbolic आएगा and root beta x आएगा। okay, so we get this, fine। next question, for this we can write this like this, and auxiliary equation is this, solving this we get two roots, one is 0 plus 2 iota means this and 1 is 0 minus 2 iota means this, तो दो यहाँ पे एक्चुअली कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, दो कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है, so here if we compare this complex roots with this we see that alpha is 0 and beta is 2, so the formula is y is equal to e to the power alpha x, alpha is 0, this c1 cos beta x, c2 sin beta x, e to the power 0x is e to the power 0 means 1, तो ये हो गया आंसर। ऑल राइट, similarly we can see this, these are all very simple questions. Here we can see that we are getting, yep, this is very important question because here we are getting three roots and first two roots are same, टू ये सेम है और -2 अलग है, तो इसके लिए देखिए तीन रूट्स तो हैं ही हमारे पास, 1 2 3, तो तीन कॉन्स्टेंट्स तो हमको लेने ही है c1 c2 c3। ठीक है, तो देखिए आप, लेट मी जूम इन, फॉर दिस रूट -2 द फैक्टर इज दिस e to the power -2x, ठीक है, एक कांस्टेंट एरिया, और इन दोनों के लिए इन दोनों के रूट सेम है, अगर सेम रूट दो बार रिपीट हो रहा है तो e to the power 2x तो आना ही है, साथ ही साथ ब्रैकेट के अंदर वी विल गेट c1 प्लस c2x, ओके, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था। सपोज ये ऐसे होता 2 2 2 2 एंड 3 3, तो y होता हमारा पहले 2 के लिए हो जाता e to the power 2x और ब्रैकेट में कुछ आता c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस c4x क्यूब। ओके, चार रूट्स हैं, चार कॉन्स्टेंट्स हैं, देन प्लस इन थ्री के लिए आता है e to the power 3x और ब्रैकेट में आता, अब देखिए c4 यूज हो चुका है, अब c5 की बारी है, c5 प्लस c6x स्क्वायर, सॉरी c6x, ये दो रूट्स सॉरी दो कॉन्स्टेंट्स दो रूट्स, टोटल रूट्स से हमारे पास 4 और 2 6 और हमने 6 कॉन्स्टेंट्स लिए हैं। ठीक है, यू कैन ऑल्सो राइट दिस लाइक दिस, पहले आपने e to the power 2x लिया था, आप चाहते तो पहले e to the power 3x भी ले सकते थे, नो प्रॉब्लम, e to the power 3x ले लीजिए एंड वी विल गेट हियर दिस c1 से लेके इतना, एंड उसके बाद आप e to the power 2x वाला टर्म ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो सिमिलरली हियर वी कैन सी दैट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट्स रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर देखिए आप 1 प्लस आइटा दो बार आ रहा है एंड देन 1 माइनस आइटा भी दो बार आ रहा है, तो इसके लिए ये हो जाएगा राइट।
इस वजह से तुम समझ लीजिए ये अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा, अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा रिपीट हो रहा है, तो अल्फा इज़ 1 बीटा इज़ 1। तो ये रहा अल्फा वाला पार्ट, इट बाय अल्फा एक्स, और अंदर आएगा हमारा इतना कॉस एक्स प्लस इतना साइन एक्स। ठीक है, ओके। Similarly, we have this, you can see this, and then we have some questions for you. Solve these questions yourself. The answers are also given here. In the next video, we will understand what is PI and how to find PI. Okay. नेक्स्ट वाले देखिए, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वी कैन सी दैट द राइट हैंड साइड इज जीरो, तो पी आई निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, बिकॉज इस ऐसे डिफरेंशियल क्वेश्चन के लिए पी आई जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल वो जीरो होना था। बट आगे हम पढ़ेंगे जैसे राइट हैंड साइड इसमें जीरो नहीं होगा, राइट हैंड साइड में कुछ लिखा होगा, सपोज यहाँ पे ई पावर एक्स लिखा है, या यहाँ पे साइन एक्स लिखा है, या फिर यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर 2x लिखा है, तो पी आई भी निकालना होता है। ठीक है, तो इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें राइट हैंड साइड में जीरो है, इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू सी एफ, और सी एफ कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमने देख चुके हैं। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।